हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हो एफटी फुल लेंथ ऑफ टेस्ट नंबर 3 टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 41 में गिवन है S प्लस 3/2 O2 गिव्स SO3 प्लस 2x कैलोरी एंड दिस रिएक्शन इज गिवन। फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो इन क्वेश्चन नंबर 41 द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 you have to find the heat of formation of SO2. तो reaction 1 is given S plus 3/2 O2 gives SO3 plus 2x calorie and this is exothermic reaction. तो delta H1 equal to minus 2x. This is number 1 reaction. And number 2, SO2 plus half of O2 gives SO3 plus y calorie. तो delta H2 equal to minus y calorie. This is calorie. So now you have to find the heat of formation of SO2. How can you find? तो for formation of SO2 S plus O2 gives SO2. तो क्या करना है यहाँ पे अभी देखिए 1 minus 2 implies S plus 3/2 O2 minus SO2 minus half of O2. It gives SO3 minus SO3. This and this are cancel out. Finally बचेगा क्या? S plus 3/2 O2 minus half of O2. It gives O2. This is SO2. Therefore, delta HF formation of SO2 equal to क्या हो जाएगा? H1 minus H2. What is H1? Minus twice X minus Y. तो क्या हो जाएगा? Y minus twice X. In which option it is given? Option number C. Therefore, option C is the correct answer. And move to the next question. Next question it is given the pK of HCN is 9.3. The pH of the solution is represented by mixing 2.5 mol of KCN and 2.5 mol of HCN in water and making up to total volume of पूरा solution का volume कितना बना दिया after mixing the volume of solution becomes 500 ml. तो उसका pH निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 42 वीक एसिड प्लस सॉल्ट क्या हो जाएगा? बफर सॉल्यूशन। कौन सी बफर बनेगा? एसिडिक बफर। फॉर एसिडिक बफर वी नो द pH इक्वल टू pK प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। तो नाउ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट? इक्वल टू 2.5 मोल। वॉल्यूम कितना है? 500। तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है into 1000. This is 5 mole per liter. And concentration of acid, this is also 5. Therefore pH equal to pKa plus log of salt का concentration 5, pKa का वैल्यू गिवन था what is given 9.30 प्लस एक हो जाएगा log 1. The value of log 1 is 0. Therefore finally we get pH equal to 9.30. Option number option 1 sorry A. Option A is the correct answer. Next come to the question number 43. Helium atom is 2 times heavier than the hydrogen molecule at 298 Kelvin. The average kinetic energy of the helium is. तो average kinetic energy क्या होता है? Average kinetic energy 3/2 RT. तो kinetic energy only depends on the temperature. Here temperature is constant. Temperature is constant. Temperature अगर constant होगा तो kinetic energy क्या होगा? Kinetic energy only depends on the temperature. So kinetic energy is same for both. Therefore same as that of kinetic energy is same for both. So in which option it is given? Option number D. Because kinetic energy only depends on temperature. Next move on to the question number 44. In which of the following compound transition metal has zero oxidation state? तो हम लोग को पता है कि some monodentate ligand जैसे NH3, H2O, CO, NO, they in coordination compound they give the zero oxidation state. तो कौन से कंपाउंड देखो ये ऐसा कंपाउंड है FeCO5. तो x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0. तो ऑप्शन 4 जो है तुम्हारा उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0. ऑप्शन डी. उसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45. Which of the following statement is false? Organ is a path function, yes, but here it is given organ is a state function. This is wrong statement and all the statements are correct. Temperature is a state function, yes.
फर्स्ट ऑप्शन 145 फॉर क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन ए इज द रॉन्ग, तो रॉन्ग कौन सा है वही पूछा था, तो 45 हो गया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम क्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ये है तुम्हारा सोडियम क्रोमेट KCrO4। तो सोडियम क्रोमेट को जब कोई भी एसिड के साथ उसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो ये होता है, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा CrO4 माइनस, तो नाउ CrO4 माइनस प्लस H plus comes from any acid, H plus comes from acid, so it gives dichromate, that is CrO4 minus plus H plus gives Cr2O7 2 minus। तो बैलेंस करना है, फिर 2 क्रोमियम है तो ये करना है प्लस 2H2O, तो इट गिव्स Cr2O7 2 minus एंड H2O, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 47 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेडियस इज करेक्ट। H प्लस सबसे छोटा है, लिथियम प्लस एंड हाइड्रोजन माइनस। इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा, फाइन एन एलिमेंट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। सबसे छोटा होगा H प्लस, देन लिथियम प्लस, देन H माइनस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 48 at 0 degree Celsius the density of a certain gaseous oxide at 2 bar is same as that of dinitrogen at 5 bar, what is the molecular mass of oxide। तो ऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होगा, तो हम लोग को पता है क्वेश्चन नंबर 48 we know PV equal to nRT, now from here P equal to n by B RT and P equal to W by M VRT or P M equal to DRT where D equal to W by V। Now from here P equal to pressure is given, so P equal to DRT by M, this is given, and P1 equal to 2, P2 equal to how much is given 5, P2 is given 5, these are same, तो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा P1 by P2 equal to M2 by M1। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M1 इक्वल टू P2 by P1 इंटू M2, व्हाट इज P2 5 by 2 इंटू कितना गिवन था ऑक्सीजन का 28, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 5 70 ग्राम पर मोल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। Next come to the move to the next question, the thermal stability of hydride of first group alkali metal element follows the order, तो down the group thermal stability of halide decreases, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 49 डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, देखो लिथियम का, उसके बाद सोडियम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, देयरफॉर LiH NaH KH RbH, यही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में बोला द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट ऑफ AgNO3 एंड आर 92.64 एंड 170 रेस्पेक्टिवली, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ AgNO3, तो अल्फा हम लोग को पता है डायरेक्ट फॉर्मूला D माइनस D बाई डी, वैल्यू पुट कर दीजिए 170 माइनस 92.64, वेपर डेंसिटी निकालना है यहाँ से, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए 92.64, तो आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट द आंसर ऑफ 83.5%, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड फाइनली कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर 51। इन क्वेश्चन नंबर 51 Fe2O3 is ferric oxide is reduced to iron नियर द टॉप ऑफ ब्लास्ट फर्नेस बाय, तो ये क्या कैसा रिएक्शन होता है, देखिए रिड्यूस हो गया Fe2O3 प्लस CO, इट गिव्स 2Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन 3, यह एलिमेंटल फॉर्म में हो गया 0, तो उसको कौन रिड्यूस किया CO, तो ऑप्शन कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन होगा
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसको रिड्यूस कर दिया। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। Bohr's radius of hydrogen atom n equal to 1 is approximately 0.53 angstrom. The radius of first excited state n equal to 2 orbit. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो रेडियस r इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो फॉर फास्ट एक्साइटेड स्टेट आर नॉट मतलब इनिशियल स्टेट का गिवन कितना है, आर नॉट इक्वल टू गिवन, आर नॉट का वैल्यू गिवन है, आर नॉट इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, n इक्वल टू 2। देयरफॉर r इक्वल टू आर नॉट का जगह पे आर नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे 0.53 इंटू 2 स्क्वायर बाई 1 z इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 4। दिस गिव्स 2.12 नॉट 13 2.12 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। ए बाइनरी सॉलिड A plus B minus has a zinc blende structure with a B minus ion constituting lattice and A plus ion occupy 25% of tetrahedral hole. The formula of the solid. तो सॉलिड का फॉर्मूला निकालना है। सपोज हमने कंसिडर किया, सपोज नंबर ऑफ B माइनस आयन, नंबर ऑफ B माइनस आयन कॉन्स्टिट्यूटिंग द लेटिस इक्वल टू 100। कितना मान लिया मैंने, 100 मान लिया। देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल साइड इक्वल टू 2 into 100 equal to 200. And what is given? As 25% of tetrahedral hole occupied by A plus ion. As तो क्या होगा 25%, मतलब 25 by 100 into 200 कितना हो गया 50। Therefore रेशियो A और B का रेशियो क्या होगा, A plus B माइनस का रेशियो क्या होगा 50:100। Therefore फॉर्मूला A का कितना होगा 1, B का 2, A B 2। Is there any option? Yes, option B. B is the correct answer. Next come to the question number 54. Which noble gas has the lowest boiling point? Which noble gas has the lowest boiling point? तो हम लोग को पता है कि down the group boiling point decreases. Down the group boiling point decreases. Down the group BP decreases. तो ऑप्शन हो जाएगा हीलियम, मतलब ऑप्शन D. Next question. The second ionization potential in electron bolts of oxygen and fluorine atom are respectively. तो very conceptual question है। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखो, दिस इज ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। तो आउटर शेल क्या है, देखो p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है जब O प्लस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, O से क्या कर दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कब मिलेगा, O से O प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हो गया। अब ये क्या हो गया, हाफ फील्ड, दिस इज हाफ फील्ड। अब देखो फ्लोरीन का मामला 2p5 नॉट 4, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तब F प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अभी देखो ये हाफ फील्ड नहीं है, ये क्या है, हाफ फील्ड है, दिस इज हाफ फील्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है, स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अभी हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, मतलब यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू दिस। उसमें हाफ फील्ड नहीं है, तो वो क्या होगा, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा फिर देन इट बिकम्स हाफ फील्ड। तो ये स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। तो यस, यही कॉन्सेप्ट से क्या पता चलेगा कि ऑक्सीजन का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी IE2 ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा एंड फ्लोरीन का कम होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी 30। ये देखो दोनों, ये फ्लोरीन का कम है, सॉरी ऑक्सीजन का कम है, फ्लोरीन का ज़्यादा है, एंड फ्लोरीन ए है तो आपका ऑक्सीजन, दोनों सेम है तो सेम होगा नहीं, ये भी सेम है ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 56। At 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If osmotic pressure of the solution is 1.52 bar, the same temperature is same. So what should be its concentration? First of all, you have to calculate the concentration. Concentration निकालना है 1 लीटर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 56, we know pi equal to CRT. पाई इक्वल टू ICRT फॉर ग्लूकोज इट इज़ 1, I इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा
pi 1 equal to I C1 RT and pi 2 equal to I C2 RT। तो यहाँ से pi 1 बाई pi 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 बाई C2। व्हाट इज pi 1? 4.98 डिवाइडेड बाई 1.52 इक्वल टू C1 कंसंट्रेशन निकालना है, कितना ग्राम है? 36 ग्राम। 180 इज द मोलर मास डिवाइडेड बाई 1 एंड C2 ये हो जाएगा 4.98 बाई 1.52 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 36 बाई 180 मतलब 36 बाई 180 डिवाइडेड बाई 1 ये हो जाएगा 1 बाई 8 इंटू 2 बाई 10 मतलब 1 बाई 5 C2। तो C2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका आंसर। C2 इक्वल टू हो जाएगा 0.2 इंटू 1.52 डिवाइडेड बाई 4.98। दिस इज 0.061 मोलर। तो ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Now move to the next question, question number 57. Question number 57. A metal capital M forms M2O3 type oxide and Mn type nitride. तो M2O3 देखने ही पता चल गया एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल इज 13। तो 13 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। And come to next question, question number 58. Consider the reaction A giving B plus C. Initial concentration of A is 1 molar. 20 minute time is required for completion of 20% reaction. 20% reaction completion होने के लिए इतना टाइम चाहिए। तो उसके बाद करना क्या है फिर? तो ये गिवन है, देखिए दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका टी हाफ निकालना है। तो A गिविंग प्रोडक्ट 20 इक्वल टू 0, ये 100% था, ये 0 था। 20 इक्वल टू हाउ मेनी परसेंट? T इक्वल टू 20 मिनट, ये कितना हो गया? 100 माइनस 20, ये हो गया 20। देयरफॉर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T, T मीन्स 20 इंटू लॉग ऑफ 100 बाई 100 माइनस 20 80। तो ये हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई 20 इंटू लॉग ऑफ 5/4, ये हो जाएगा log 5/4। 2.303 डिवाइडेड बाई 20 इंटू log 5 का वैल्यू गिवन है 0.6989 माइनस 0.6020। तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 0.98969 हो गया। तो टी हाफ निकालना है, देखो तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। तो के का वैल्यू तो आ ही गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू गेट आंसर 62.13 मिनट। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। के का वैल्यू पुट करने से आफ्टर कैलकुलेशन यही आंसर मिलेगा। Hello everyone, welcome to the discussion of CEE FT3 Organic Chemistry part. Let's start from question number 59. तो 59 में क्या है? Which of the following compounds is not aromatic? Aromatic कौन नहीं है? ठीक है, तो आप अपना ये ऑप्शन ही देखेंगे, वही आंसर है। ये जो आपका रिंग है, इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है रेजोनेंस में? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और आपको पता है 4 पाई मतलब एंटी एरोमेटिक। सही बात है, ठीक है। बाकी ऑप्शन बी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, डी में सी बी सी डी आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा, वो सब एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो ए ही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 60 पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज, ठीक है। तो फिनॉल, इथानॉल, क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, मेरे हिसाब से इनको ही जंबल करके ऑप्शंस में दिया हुआ है। मैं इनका पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही बताता हूँ। पहले कंपाउंड लिख लेते हैं। फिनॉल है मतलब बेंजीन से OH अटैच। नेक्स्ट है इथानॉल, CH3 CH2OH। नेक्स्ट है क्लोरो एसिटिक एसिड, और एक है एसिटिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल और अल्कोहल से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप है -I, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज्यादा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, ठीक है। तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले होगा मतलब सबसे कम एसिडिक
इज इथानॉल, ठीक है, लैंग्वेज में ही लिख लेते हैं, सबसे कम एसिडिक है। उससे ज़्यादा एसिडिक है फिनॉल, उससे ज़्यादा एसिडिक है एसिटिक एसिड, उससे ज़्यादा एसिडिक है क्लोरो एसिटिक एसिड। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो इथानॉल पहले, उसके बाद फिनॉल, फिर एसिटिक एसिड, फिर क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी अगर आप ध्यान से देखोगे, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 61 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 में हमें बोला है प्रोपीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, प्रोपीन रिएक्ट्स विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। तो कोई जैसे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड R2O2 ले लेते हैं, टू गिव 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लगेगा, बीच वाले कार्बन पे Cl लगेगा, क्योंकि इसमें खराश इफेक्ट नहीं लग सकता, खराश इफेक्ट सिर्फ HBr में लगता है। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। 2 पे आते हैं, एडिशन ऑफ HCl डज नॉट फॉलो खराश इफेक्ट, ट्रू। यस, HCl से खराश इफेक्ट नहीं होता, जो मैं अभी बोल रहा था। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 62 पे आते हैं। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद डाईएल्काइल कॉपर रिएजेंट, डाईएल्काइल कॉपर रिएजेंट ये हो गया, इसको बोलते हैं गिलमान्स रिएजेंट। इट रिएक्ट्स विथ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, टू गिव, तो SN2 पाथ होता है बैक साइड अटैक, तो इससे एल्केन बनता है, ठीक है, दिस इज एल्केन। इस मेथड को बोलते हैं कोरेहाउस सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 63 पे, ठीक है। फिनॉल अपने पास है, इसका अगर हम लोग रिएक्शन करें जिंक डस्ट के साथ, ठीक है, तो हमें मिलेगा बेंजीन विच इज X। इसका रिएक्शन अगर CHCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करेंगे तो Cl को ट्रैप करेगा, इससे टॉल्वीन बन जाएगा Y। और इसका रिएक्शन अगर एल्केलाइन KMnO4 हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो ये टॉल्वीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिससे बेंजाइलिक कार्बन में अगर एक भी हाइड्रोजन है तो KMnO4 इसे ऑक्सीडाइज कर देता है बेंजोइक एसिड में, तो ये बन जाएगा Z। तो पूछा है Z क्या है, तो ये बेंजोइक एसिड है, D, ठीक है। 64 प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। हम देख ही रहे हैं कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इसको कन्वर्ट कर दो कीटोनिक ग्रुप में, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपने सबने सही किया होगा, ये लास्ट FT में भी आया था, कुचेरोव रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। 65 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है, अगर एस्पार्टिक एसिड, ल्यूसीन, वेलाइन, ग्लाइसिन और एलेनाइन में हम लोग देखें तो ल्यूसीन और वेलानाइन ल्यूसीन और वेलाइन जो होता है, ये दोनों एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। ये 20 अमाइनो एसिड का एक लिस्ट है NCERT में, उसमें ऑलरेडी मार्क किया हुआ है कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है। तो ये मेरे हिसाब से सबने सही किया होगा, तो बी और सी हमारा ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो एक NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन इज यूज्ड एज एन, ये सबको पता ही होगा, इट इज अ पेन किलर, ठीक है। तो एनाल्जेसिक होगा ये, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक या फिर इंसेक्टिसाइड नहीं हो सकता। ये भी NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 67 हम लोग देख लेते हैं। 67 में हमें कंपाउंड दिया है ये OH NH2 COH। तो 3 फंक्शनल ग्रुप में अगर देखेंगे पैरेंट चेन फॉर्म करेगा COH, ठीक है। तो स्टार्ट तो यहाँ से ही करेंगे, तो बाकी सब्सटीट्यूएंट्स को मिनिमम पोजीशन, तो मैं इसको वर्बली कर देता हूँ, 2 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। 2 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन ए इटसेल्फ इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बाकी सब देखने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है बाकी सब। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट 68 की बात करते हैं। तो हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, इट एग्जिबिट्स, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तो GI नहीं रहेगा क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एटम में ग्रुप C में, लेकिन आपको पता है कि ये कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है। तो कैन एग्जिबिट जो बोला है इसका सही आंसर होगा C, ठीक है। ज्योमेट्रिकल नहीं दे सकता वरना ऑप्शन डी होता, इन C होगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं 69 पे। विच ऑफ द ग्रुप्स हैज हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट। तो बड़ा सिंपल है, जिसमें क्राउडिंग ज़्यादा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इनमें, तो ये जो मैं आपको पूरा ऑर्डर ही बता देता हूँ इसका, ठीक है, क्लियर है, जो हमें दिया हुआ है ग्रुप्स, तब आपको आइडिया लग जाएगा। 3 डिग्री सबसे अच्छा प्लस आई हो जाएगा इनमें, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री और लास्ट में ये, ठीक है।
तो सबसे अच्छा प्लस आई कौन हो गया, ये। सही बात है, तो इसलिए हमारा सही आंसर जो है वो होगा डी। 70 पे आते हैं, ठीक है। X इज हीटेड विथ सोडा लाइम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड हाई टेम्परेचर, ठीक है, एंड गिव्स इथेन। तो X इज, तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। ये इथेन बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। RCOH से अगर तुम इस रिएजेंट का रिएक्शन करते हो, मैं आपको बताता हूँ बनता क्या है। ये CO2 हट जाता है और RH बन जाता है, सही है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये जो R ग्रुप इस केस में और कुछ नहीं CH3CH2 है। सही बात है, एग्री करेंगे सब लोग। बस R की जगह पुट कर दो ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें प्रोपानोइक एसिड, हमारा आंसर हो जाएगा C। तो आपने देख ही लिया होगा मैंने कैसे निकाला है, ठीक है। ऐसे भी इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब कार्बन एटम्स डिक्रीज होता है इसमें। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे कितने हैं, 2, ठीक है, क्लियर है, 2 इथेन। इसलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड। 71 पे आते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग सीरीज। तो CH3CH2I आयोडो इथेन का रिएक्शन अगर एल्कोहलिक KOH से करेंगे E2, तो इससे क्या बनेगा, इथीन X। इसका रिएक्शन अगर Br2 से करेंगे तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ये बन गया Y। इसके बाद इसका रिएक्शन KCN SN2, तो Br हटाओ और CN लगाओ, तो ये हो जाएगा हमारा Z, ठीक है। तो अब हमें बोला आइडेंटिफाई Z, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन बी, ठीक है, बी में एक्चुअली 2 CN है, तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 पे आते हैं। अ फ्रूटी स्मेल इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथानॉल विथ। फ्रूटी स्मेल ईस्टर का होता है, ठीक है। तो इथानॉल का रिएक्शन किसके साथ करने से ईस्टर बनेगा, तो बड़ा सिंपल, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर आप एल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करोगे तो ही आपको ईस्टर मिल सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, सी, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। 73 पे आते हैं। 73 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम से कौन सा पॉलीमर बनता है, तो इसका आंसर होता है सी, ठीक है, नाइलॉन 6। ये आप लोगों को डायरेक्ट पॉलीमर्स में मिल जाएगा। तो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला, इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6, दिस इज द इनऑर्गेनिक बेंजीन। द कॉन्सेप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस क्वेश्चन है। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन ए मेटल इज बर्न्ड इट्स वेट इज इंक्रीज बाय 24%, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज। तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। कोई मेटल को क्या क्या बर्न करने के बाद उसका वेट 24% इंक्रीज हो गया, तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 75। तो मान लो कोई भी मेटल है, उसको ही किसके साथ किया, ऑक्सीजन के साथ, क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड। अभी यहाँ से देखो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास 16, एन फैक्टर कितना हो गया 2, ये हो गया 8 हो गया ना। तो अभी देखो रिएक्शन में क्या था, मेटल किसके साथ रिएक्ट किया था, O2 माइनस क्या बन गया था, मेटल ऑक्साइड। तो बिफोर रिएक्शन के पहले क्या था, मान लिया मेटल का मैंने x था, वेट था, तो आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्साइड बन गया x प्लस 8, उसका इक्विवेलेंट वेट 8 है, और उसका मास कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 24% इंक्रीज हो गया। कितना है, 24/100 x प्लस x। देयरफॉर 24/100 इंटू x इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा 33.3। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट टू द reaction system. When we adding a catalyst, then it increase both forward as well as backward reaction। डाटाबेस क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका आंसर। 76 का आंसर होगा डी। कैटलिस्ट ऐड करने से आपका बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, फॉर द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक डस्ट, फॉर द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक डस्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ए बम कैलोरीमीटर। तो बम कैलोरीमीटर ऐसा एक डिवाइस है जो पूरा क्लोज होता है, मतलब उसको क्लोज सिस्टम माना जाता है, एक डिवाइस है, तो क्लोज सिस्टम होता है। बम कैलोरीमीटर क्या होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है, नो एक्सपेंशन और नो कंप्रेशन।
वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा बी 0 होता है, तो देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू डेल्टा बी, तो डब्ल्यू 0 हो जाएगा। अब देखिए इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, तो योर आंसर इन बिटवीन दिस टू ऑप्शन हियर डब्ल्यू इज नॉट 0। तो अभी फिर यहाँ चेक करेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ कंबाशन रिएक्शन होता है। तो और देखो रिएक्शन कैसा होगा, जिंक डस्ट, जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 लिक्विड, बॉम्ब कैलोरीमीटर में ये रिएक्शन होता है ZnSO4 सॉलिड। तो डेल्टा एन जी निकालेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो हम लोग को पता है डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी 0 है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा यू क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, सिंपल बात है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। तो उसमें देखिए यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर था +1, तो यहाँ क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर होगा सी। एंड लास्ट क्वेश्चन, द हेलोजन बॉन्ड XX बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज मिनिमम। तो किसका सबसे कम होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये कैसे होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ डाई हैलाइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाई हैलाइड डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, तो सबसे कम होगा आयोडीन का। तो उसमें 80 क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा, 80 का आंसर होगा I2 मीन्स ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू एवरीवन।